last lecture we study about the expression for displacement, velocity and acceleration. Okay, so at extreme position means where is the displacement is maximum, where is the velocity is maximum, and where is the acceleration is maximum. Okay, so as we know that we have that expression for displacement x is equal to a sin omega t plus phi. Okay, then for velocity we find the expression dx by dt, डेरिवेटिव लिया था इसका a ओमेगा cos of omega t plus phi. Okay, and similarly for acceleration का हमने एक्सप्रेशन देखा था a is equal to dv by dt. Okay, we have a minus a omega square sin of omega t plus phi. ये पहले देखा था हमने. Then we study about the expression for displacement, velocity and acceleration at its extreme values of displacement, velocity and acceleration. Okay, तो इसके एक्सट्रीम वैल्यू देखे थे हमने. जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन था x is equal to a sin ओमेगा t plus phi ओमेगा t. जनरल एक्सप्रेशन लिया था हमें x is equal to a sin ओमेगा t. ओके, v का एक्सप्रेशन प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर x. और इस पे से हमने निकाला था उसका एक्सट्रीम वैल्यूज. आप कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड, देन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. सो एम्पलीट्यूड मतलब आपको पता है. सो वी नो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम एज वी हैव already discussed it in the very first lecture. So amplitude means, see here, as we know that we have considered that spring. Okay, so this spring is it as mean position. It has one mass of m is attached here. Okay, so when we extend this spring towards the right side, then what happens, whatever be the its displacement from its mean position. तो इसको हमने क्या कहा था, उसका इसका जो भी maximum displacement रहेगा mean position से, that is known as the amplitude. और जब इधर ये कॉम्प्रेस हो जाएगा तब यहाँ पे इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा था हमने, एम्पलीट्यूड ही कहा था फ्रॉम द मीन पोजीशन. मतलब एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है कि पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. सो दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. मतलब पार्टिकल का जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, अब उसके लिए हमें एक्सप्रेशन देखना है. सो वी आर गोइंग टू फाइंड हियर द expression for amplitude, time period, कभी periodic time भी बोल सकते हैं, time period and frequency. Okay, so see here, as we know that, so first we are going to find the expression for amplitude. पहले हम amplitude का expression देखेंगे. अब amplitude, see here, amplitude means the maximum displacement of particle from its mean position, that is called as the amplitude. amplitude मतलब क्या होता है, कोई भी, जैसे हम सिंपल पेंडुलम है, हमारे पास पेंडुलम है. अब ये पेंडुलम ऐसे, इसका ये मीन पोजीशन है O, अब ये ऐसा ऑसिलेट होता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन. ओके, सो इसका जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा इसके मीन पोजीशन से, उसे हम क्या कहते हैं, that is known as the amplitude. Okay, so amplitude means the maximum displacement of particle, from its mean position. Maximum displacement of particle from its mean position is known as the amplitude. From its mean position, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. नाउ हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड.
अब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जनरली वी हैव डिनोटेड इट इज बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एम्पलीट्यूड कैसे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल ए। ओके, so as we know the dear students, as we know the expression for the displacement, general expression for the displacement हमें पता है if the particle is performing our oscillatory motion या फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर हमारा पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तब उसके डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन आपको पता है। सो यू नो दैट द x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi, x is equal to a sin omega t plus phi, it is the expression for the amplitude। ये एक्सप्रेशन आपको पता है। ओके, सो नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे हम। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। नाउ इफ द पार्ट व्हेन दिस पार्टिकल हैव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब इस पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब रहेगा? when this particle have the maximum displacement, means when x is equal to a रहेगा, but x is equal to a कब रहेगा? when sin omega t plus phi is equal to 1 रहेगा, means the particle has maximum displacement। पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब रहेगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब रहेगा? जैसे अभी देखो ये सिंपल पेंडुलम है, अब इसको ये ऑसिलेट हो रहा है मेन पोजीशन पे, अब इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब रह सकता है? मैक्सिमम कब रहेगा? जब यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? x is equal to a sin omega t plus phi है, we have this expression। okay, so now when x is equal to either plus 1 और इसको मे बी एम्पलीट्यूड में भी अगर पॉजिटिव साइड की तरफ रहा तो प्लस ए रहेगा, नेगेटिव साइड की तरफ रहा तो माइनस ए रहेगा। जैसे हम स्प्रिंग के बारे में देखा था, अगर वो एक्सटेंड हो रही है, इलॉन्गेट हो रही है, तो उसका अगर राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, अगर लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव रहेगा फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। सो आवर एम्पलीट्यूड विल बी आइदर x is equal to plus minus a if sin omega t plus phi is equal to क्या रहेगा? 1 रहेगा। मतलब जब sin omega t plus phi is equal to 1 रहेगा तब हमारा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? sin ओमेगा t प्लस phi इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। मतलब जब हमारा एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम रह सकता है? देखो यहाँ पे इट इज वेरी इजी, मतलब ये जब वैल्यू 1 रहेगी तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? वी गेट द x इज इक्वल टू a प्लस माइनस a। ओके, मतलब लेफ्ट साइड में रहा तो पॉजिटिव a रहेगा और राइट साइड में रहा तो पॉजिटिव a रहेगा और लेफ्ट में रहा तो नेगेटिव a रहेगा। ओके, सो इफ वी पुट दिस वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? ओमेगा t प्लस phi का वैल्यू क्या आएगा? ओमेगा t प्लस phi का वैल्यू क्या रहेगा? एक तो पाई बाय 2 रहेगा या फिर 3 पाई बाय 2 रहेगा। ओके, मतलब इसका वैल्यू एक तो पाई बाय 2 रहेगा या फिर 3 पाई बाय 2 रह सकता है। ओके, अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। सो पुट द दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 एम्प्लाइज, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा हमें? x is equal to a sin ओमेगा t प्लस phi की जगह क्या डाला हमने? 1 into 1, तो x is equal to क्या मिलेगा हमें? प्लस माइनस a। so this is the expression for the amplitude। okay, तो x is equal to a, अगर x is equal to a है, अब ये अब देखो यहाँ पे x is equal to ये मिला हमें, इस एक्सप्रेशन में हमने ये वैल्यू डाली ना, sin ओमेगा t प्लस phi का वैल्यू 1 डाला, अब x is equal to a मिला। अब ये वैल्यू अगेन पुट इन दिस इक्वेशन 1, ये वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वही हमें फिर से क्या मिलेगा? sin ओमेगा t प्लस phi is equal to 1। so put x is equal to put in 1, तो x is equal to a यहाँ पे पुट किया, हमारे पास एक्सप्रेशन 1 क्या है? x is equal to a sin ओमेगा t प्लस phi, तो इसकी जगह क्या डाला हमने? a is equal to a sin ओमेगा t प्लस phi, a गेट्स कैंसल, तो क्या मिलेगा हमें? sin ओमेगा t प्लस phi इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड। ये क्या हो गया? एक इसका एक्सप्रेशन है एम्पलीट्यूड का। ओके, सो एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर a। कैपिटल लेटर a से डिनोट किया जाता है।
अब आपको पता है कि we know that the expression for the displacement of particle, तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, x is equal to a sin omega t plus phi. ओके, तो अब अगर पार्टिकल को एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब रहेगा, जब ये वैल्यू क्या रहेगी, इसकी 1 रहेगी. sin omega t plus phi is equal to 1 कब रहेगा, जब omega t plus phi is equal to क्या रहेगा, एक तो pi by 2 रहेगा या फिर 3 pi by 2 रहेगा. तो ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, हमें x is equal to a मिला, यही वैल्यू हमने ये यहाँ पे पुट की, तो sin omega t plus phi is equal to 1 मिलेगा. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड. अब हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. अब ये टाइम एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन हो गया, अभी टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन देखेंगे या फिर पीरियोडिक टाइम भी बोलते हैं उसको. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड या फिर पीरियोडिक टाइम. अब periodic time means what? So periodic time means see here. Periodic time या फिर time period भी बोल सकते हो आप इसको. Periodic time या फिर time period. Periodic time means time required to complete one oscillation. अब one oscillation means what? As we know that suppose if we consider this is a pendulum, this pendulum is at mean position O. ओके, अब मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को यहाँ से ए पोजीशन पे लेके गया. सो व्हेन आई रिलीज दैट पेंडुलम फ्रॉम पोजीशन ए से रिलीज करने के बाद व्हाट विल हैपन, दैट पेंडुलम विल बी ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन. तो पेंडुलम क्या करेगा, उसके मीन पोजीशन पे ऐसा ऑसिलेट करेगा. ओके, तो अब मैंने यहाँ पे पेंडुलम इनिशियली उसके मीन पोजीशन ओ पे था. सो व्हेन आई ब्रिंग दैट पेंडुलम टू द पोजीशन ए and I release that pendulum from the position A. Position A से मैंने उस pendulum को वहाँ से रिलीज किया. अब वहाँ से रिलीज करने के बाद what will happen? This pendulum will be oscillate about the mean position. तो A से क्या होगा, फिर O पे जाएगा, O से क्या होगा, फिर B पे जाएगा. Okay? So whatever be the time taken by that pendulum to complete one oscillation. One oscillation means what? अब यहाँ से A से रिलीज किया था मैंने, फिर ए से रिलीज करने के बाद सपोज दिस इज मीन पोजीशन एंड दिस इज ए से रिलीज किया, ओ पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा, अगेन बी टू ओ, अगेन ओ टू ए पे आएगा, देन इट कंप्लीट वन ऑसिलेशन. मतलब यहाँ से मैंने इसको रिलीज किया, देन यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा ओ के पास, ओ से बी तक जाएगा, अगेन फ्रॉम बी टू ओ एंड अगेन फ्रॉम ओ टू ए, देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट इट विल कंप्लीट वन ऑसिलेशन. And whatever be the time taken by that pendulum or by that object performing simple harmonic motion or oscillatory motion, that time period, that time is known as the time period or periodic time. Okay, this time period means time required to complete one oscillation. मतलब एक oscillation complete करने के लिए जो भी बॉडी oscillatory motion perform कर रही है, ओके, तो जो भी टाइम वो लेती है दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड. ओके, अगर 1 सेकंड टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन इट टेक्स सपोज 2 सेकंड, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकंड. सपोज एनी बॉडी टेक टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन, अगर इट टेक्स 4 सेकंड, तो उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 4 सेकंड, लाइक दैट. ओके, सो पीरियोडिक टाइम मींस टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, time taken by object to complete one oscillation. One oscillation complete करने के लिए जो भी टाइम लगता है that is known as the is called time period. इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं and it is denoted by letter capital T. It is denoted by capital letter T. Okay, so this is about the time period. Now we are going to find the expression for time period. अब हमें time period के लिए expression find करना है. Now you know that the equation of displacement is very important. So as whenever we are going to find any expression in this chapter, we have to use the expression for displacement. Displacement का expression आपको पता है. So we know the expression for displacement of a particle at a time t. Okay, so we know the expression for displacement, expression for displacement
expression for displacement of a particle performing SHM. Performing SHM, that is simple harmonic motion. Okay. Performing simple harmonic motion. So see here. So x is equal to a sin omega t plus phi. So at a time t का expression है ये, at a time t. Okay. So now see here. We know the expression for displacement of a particle performing SHM at a time t. तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? x is equal to a sin omega t plus phi. Okay. तो इसका एक्सप्रेशन क्या है हमारा? x is equal to a sin omega t plus phi. Now here we are interested to find the expression for time t. अब ये एक्सप्रेशन क्या है? at a time t के लिए है. Okay. So now suppose after time t सेकंड, तो आप इसका जो हम टाइम t इसका एक्सप्रेशन निकालना है हमें कैपिटल t के लिए. अब ये एक्सप्रेशन फॉर अ टाइम t, तो फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम t, तो क्या रहेगा इसका फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम t? तो t फॉर अ टाइम t, फॉर टाइम t इज इक्वल टू क्या रहेगा? t प्लस, अब ये t इज इक्वल टू क्या रहता है? ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा. तो यहाँ पे t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा, t प्लस कैपिटल t. पुट दिस वैल्यू, सपोज इसको इक्वेशन 1 लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन नंबर 1. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. अब t की जगह आपको क्या पुट करना है यहाँ पे? t प्लस ट्वाइस पाई बाय ओमेगा. सो पुट द x इज इक्वल टू a sin इन ब्रैकेट ओमेगा. t की जगह क्या डालोगे? t प्लस ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, t प्लस ट्वाइस पाई बाय ओमेगा प्लस फाई. तो ये मिल गया हमें ये. अब सिंपली व्हाट सिंपल मैथमेटिक्स इज हियर, सिंपली मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे. सो a sin ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिए, ओमेगा t प्लस ओमेगा ट्वाइस पाई ओमेगा, और ये ओमेगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा? ट्वाइस पाई प्लस फाई बचेगा. ओके. यहाँ पे क्या बचेगा? ट्वाइस पाई प्लस फाई. अब इसको थोड़ा मैं मैथमेटिकली अरेंज करता हूँ. तो सी हियर, तो हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस ट्वाइस पाई, ओमेगा t प्लस ट्वाइस पाई प्लस फाई मिला. ओके. नाउ जस्ट ओनली सिंपल मैथमेटिकल एडजस्टमेंट इज हियर. सो वी आर जस्ट अरेंजिंग द टर्म्स. नाउ sin ओमेगा, इसको लिखता हूं मैं, ट्वाइस पाई प्लस ओमेगा t प्लस फाई. ओके. तो नाउ सी हियर इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव वन फार्मूला. ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फार्मूला है. अगर साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा रहा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा रहा, तो इसका आंसर क्या मिलता है? साइन थीटा मिलता है. ओके. अब सिमिलरली हमारे पास क्या है? साइन ऑफ ट्वाइस पाई प्लस ओमेगा t प्लस फाई. तो इस टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे? वी कंसीडर दिस टर्म एज अ थीटा हमारा. तो हमको क्या मिलेगा फिर यहाँ पे? व्हाट वी विल गेट sin 2 ट्वाइस पाई प्लस ओमेगा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है हमारा? ओमेगा t प्लस ओमेगा t प्लस फाई है. तो हमें साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या मिलेगा फिर? ओमेगा t प्लस फाई. ओके. सो ओमेगा t प्लस फाई. तो हमने क्या बोला था? टाइम पीरियड मींस व्हाट? टाइम रिक्वायर्ड और टाइम टेकन बाय गिवन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगता है गिवन ऑब्जेक्ट को, तो उसे क्या कहते हैं हम? टाइम पीरियड. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, सो एज वी नो दैट, सो a sin ट्वाइस पाई ओमेगा t प्लस फाई. इसका समझ में आया आपको? हमारे पास फार्मूला क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में क्या रहता है? sin ट्वाइस पाई प्लस थीटा रहा, तो ट्वाइस पाई प्लस थीटा रहा, तो इसका आंसर क्या मिलता है? sin थीटा मिलता है. ओके. तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? a sin ओमेगा t प्लस फाई मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बिकॉज वी हैव द फार्मूला
साइन cos pi plus theta is equal to sin theta. ओके, क्योंकि we have the one formula in trigonometry, sin twice pi plus theta रहा तो उसका आंसर क्या आता है, sin theta आता है. तो हमें देखो आप बोलोगे सर we have the same expression that we have considered. हमने जो डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन देखा था लास्ट में वही एक्सप्रेशन फिर से मिल रहा है. So actually what happened here, suppose you have started from one position. Suppose आप किसी ग्राउंड पे राउंड लगा रहे हो. Okay, so you are standing at this position. So it means that when you complete your one oscillation, जब आप एक oscillation पूरा करोगे, then what will happen? You will again come back to the same position. जैसे आप एक राउंड लगा रहे हो ऐसे ग्राउंड को, तो आप इनिशियली इस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया और बाद में यही एक राउंड कंप्लीट होने के बाद what will happen? You will be come back to the same position. So that is known as the periodic time. मतलब आप उतने टाइम के बाद हम कहीं पे कहाँ पे आएंगे, उसी पोजीशन पे आए. See here, we have considered in the beginning of this expression, we have considered the same expression, a sin omega t plus phi, and at the end of this expression, we are getting the same expression. Okay? So why we are getting the same expression? Because time period means time required to complete one oscillation. Time period मतलब क्या होता है? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड. तो उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड. ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड एंड यू नो दैट कैपिटल टाइम t इज इक्वल टू क्या रहता है? कैपिटल टाइम t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा. ओके, सो कैपिटल टाइम t इक्वल टू यू नो दैट ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा रहता है. सो आई विल राइट हियर. अब देखो यहाँ पे कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा है हमारे पास. ओके, सो नाउ यू नो दैट, अब आपको पता है कि ओमेगा का वैल्यू क्या लिया था हमने, जब हमने पहले डेफिनेशन देखा था लीनियर सिंपल हार्मोनिक का डेफिनेशन लिया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. सो F इज इक्वल टू सम फोर्स, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट आया था. ओके, तो फोर्स कांस्टेंट आने के बाद यहाँ पे क्या किया था हमने, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस k बाय m इनटू x. तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या कंसीडर किया था एज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, k बाय m है. देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर. ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा. तो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट ऑफ k बाय m. अगर इसको थोड़ा अरेंज करेंगे मैथमेटिकली तो ट्वाइस पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ m बाय k. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. तो ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. ओके, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या लेना है हमें, t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. सो इट इज वेरी इजी. So what we have considered, time period मतलब क्या होता है आपको पता है, time period means time required to complete one oscillation. जो भी पार्टिकल oscillation परफॉर्म कर रहा है, अगर उसको जो भी one oscillation कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा, whatever be the time taken by that particle to complete one oscillation, that is called as the time periodic time or time period. अब हमें डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन पता है, तो x is equal to a sin omega t plus phi. एक्सप्रेशन कंसीडर किया एट अ टाइम t. अब एट अ टाइम t पे क्या रहेगा, तो हम एट अ टाइम t पे क्या रहेंगे, हम t प्लस ये स्मॉल t रहेगा. तो यहाँ पे कैपिटल T की वैल्यू क्या रहती है, ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा प्लस ये स्मॉल t. तो ये इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में डाली हमने t की जगह ये वैल्यू डाला, सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ओमेगा t प्लस ट्वाइस पाई प्लस phi एंड सिंपली इसको मैथमेटिकली अरेंज किया एंड वी हैव द फार्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री. sin twice pi plus theta is equal to क्या आता है, sin theta, and we are getting the same expression that we have considered in the beginning of the expression. So we just put that omega का वैल्यू यहाँ पे पुट किया है, क्योंकि हमें वही एक्सप्रेशन क्यों मिल रहा है, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद आप कहाँ पे आओगे, उसी पोजीशन पे वापस आओगे ना. सपोज आप ऐसे यहाँ से राउंड स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट किया एंड यू हैव कंप्लीटेड वन राउंड. So then it means that you again come back to the same position. आप उसी पोजीशन पे वापस आ रहे हो, तो that is the time period. उसे हम
टाइम पीरियड कहते हैं। इसलिए वही एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे वापस मिला है। अब t की वैल्यू पता है आपको, t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई ओमेगा। सिंपली हमने ओमेगा का वैल्यू पुट किया यहाँ पे एंड वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। अब उसी तरह से हमें फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। सो यू मे बी टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। तो पहले हमने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन देखा, एम्पलीट्यूड का देखा, अब टाइम पीरियड का देखा या पीरियोडिक टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचओ। अब frequency मतलब what? Now frequency, as if you know the time period, you can easily understand the expression for frequency. अगर आपको time period का expression समझ में आया है तो you can easily understand the definition of frequency also and its expression also, because time period and frequency both are related. आपको पता तो होगा अभी कैसे related है। So now see here, frequency means what? So frequency means, see here, as we know that time period आपको पता है, time period means time required to complete one oscillation। एक oscillation पूरा करने के लिए हमें जो भी टाइम लगेगा that is known as the time period। Okay, अब frequency मतलब what? Frequency means what? अब frequency means number of oscillation completed in 1 second। मतलब एक सेकंड में given पार्टिकल जितने भी oscillations परफॉर्म करता है that is called as the फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे अभी हमने टाइम पीरियड मतलब क्या कहा था कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। बट फ्रीक्वेंसी क्या है, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है। सो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डिनोटेड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या मिला था, t इज इक्वल टू ट्वाइस बाय अंडर रूट ऑफ m अपॉन k मिला था, अंडर रूट ऑफ m अपॉन k मिला था। अब फ्रीक्वेंसी मींस what is meant by frequency? Frequency means time required to number of oscillations completed, number of oscillations completed in 1 second। मतलब एक सेकंड में जितने भी वो ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड मतलब हमने क्या किया, इन टाइम पीरियड सपोज इट कंप्लीट किया नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड में इसने n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म किए। सो हाउ मेनी ऑसिलेशन इट विल बी कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना आएगा, n इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, n इज इक्वल टू 1 अपॉन t आएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी वी आर डिनोटेड दिस फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल n लेटर से, और its SI unit is hertz। its SI unit is hertz। ओके, so इसका SI unit क्या है, hertz है। ओके, so now we are going to find the expression for frequency now। अगर आपको इसका एक्सप्रेशन समझ में आया you can easily understand this expression also। तो आपको ये भी एक्सप्रेशन आप इजीली समझ जाओगे। अब कैसे का देखो यहाँ पे, अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय n, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। अब ये पीरियोडिक टाइम का रेसिप्रोकल है। अब पीरियोडिक टाइम का एक्सप्रेशन आपको पता है, वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम का एक्सप्रेशन वी हैव जस्ट फाइंड इट। तो हमें पीरियोडिक टाइम का एक्सप्रेशन क्या मिला था, t इज इक्वल टू ट्वाइस बाय अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। So put this value here. So n is equal to 1 upon t का वैल्यू क्या आएगा फिर, twice by under root of m upon k। तो इसको सिंपली मैथमेटिकली हम एडजस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 upon twice by, तो ये under root of k by m, and this is the expression for your frequency। तो ये एक्सप्रेशन किसका मिला हमें, फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड।
एक सेकंड में गिवन ऑसिलेशन, जैसे अब ये पेंडुलम का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अब ये जितने भी एक सेकंड में ऑसिलेशन करेगा, सपोज इट परफॉर्म द 10 ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 10, इट परफॉर्म द 100 ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, तो इट इज नोन एज दी, उसको 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, तो पीरियोडिक टाइम का यहाँ पे वैल्यू पुट की और सिंपली आपको ये तो मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ m अपॉन k है, अब ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k बाय m, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आवर frequency. So in this way we study the expression for amplitude, time period and frequency. Okay, so amplitude मतलब हमने देखा amplitude में maximum displacement from mean position, time period means time required to complete one oscillation and frequency means number of oscillations completed in 1 second. तो इसके ऊपर छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. Okay, so this is about the expression for frequency. Okay, so thank you very much. Thank you.